Hey everyone, I hope all of you are doing great and are safe. Well, the exams are around the corner and there's this one question in everyone's mind, and that is कि भाई Company Act 13 में कितने amendments हुए? Well, the answer to that question is yes, there are quite a few amendments, and the most important part is the institute will have its focus on these amendments. So in this whole session, I'm going to cover each and every amendment in detail. There are about 54 amendments which are there, which I have covered in this whole PDF. And don't worry, I'm going to share this PDF with you. आपको link मिल जाएगा description box में. The only thing which you need to do right now is focus and just understand what exactly this amendment and where the amendment has come. There are a lot of amendments. So, for example, new sections have been introduced. Some words have been substituted. I'll just take you through what exactly are we going to do, and then I'll proceed one by one with the amendment part. Okay. Make sure that you please focus rather than writing anything right now. Make sure you understand everything, because afterwards you can just write it because PDF तो आपको मिलने वाला है. So just do it writing part afterwards. Okay. Right now just focus on the explanation कि exactly कहाँ पे amendment हुआ है. There are quite a major amendments in your curriculum, okay, which are applicable for the November 21. That is, it has been postponed to December 21 examinations, okay. And these amendments are for the intermediate level, okay. So Company Act 13 में जो amendments हुए, that I'll just tell you where it is and where you need to focus. When I'm going to start with the PDF, I'm going to tell you कि ये amendment important है, but just to give you an overview where the amendments have been there, so please pay attention. As you might know, because मैंने कुछ दिन पहले CA फाउंडेशन का अमेंडमेंट लेक्चर ये किया था अपलोड, उसमें मैंने 3-4 अमेंडमेंट्स कवर किए थे because they were there for their level. Now, the most important to just give you a highlight, OPC is one where amendment is there. Then you have CSR जहाँ पे major amendments लाए उन लोगों ने. 1% company, corporate social responsibility, accounts and audit, especially accounts में accounts and audit इस chapter में amendments लेके आए, especially here in accounts. Next, small company में amendments लेके आए. The criteria for small company has been changed. Next, जो imprisonment का clause था, there were a lot of sections where there was fine and imprisonment, so they have done away with the imprisonment part. I'll tell you which sections are those. So in this manner we are going to do step by step where the amendments are. Okay, so this is just an overview. बहुत सारे amendments, minute amendments है. So as I said earlier, approx 54 amendments are there. Wherever there is a major content, I'll let you know कि yes boss तुमको यहाँ पे focus करने का है, and please institute amendments के ऊपर जरूर question पूछेगी, because the whole focus will be on this. Okay, there are quite a few amendments related to COVID also. So boss COVID के जितने भी related amendments है वो ये exam में या upcoming exam में पूछेंगे. मतलब 2021 का जो आपका December exam है and your May and also December 2022 का. So students, please note that institute will have full focus on these amendments, okay, and they will also expect that you know everything. Okay, so without wasting any further time, please we'll start with the lecture. If you have any doubt regarding any of the amendment, please do reply in the comment box. I'll be very happy to reply them. Okay, so let us start without wasting any further time. Okay, so this is one small PDF which I've basically compiled everything. जितने भी आपके amendments थे मैंने वो compile करके एक ही PDF में बनाए, so that you will know what is the old provision and also the new provision. As you can see on your screen, chapter wise किया है मैंने. Okay, so chapter wise they are there. Let us start with the first one, and that is section 2 subsection 52 listed company. Okay, now these are very simple ones, but please make sure, because see in your paper they will ask you definitions also, and this is at the top of your priority, because listed company का पहले definition क्या था? A company which is listed on any recognized stock exchange. That's it. Section 2 subsection 52 हम लोगों ने इतना ही किया था.
But wait, now they have done something else. So what they have done is that they are telling that such class of companies which have listed or intended to be listed, I'll just zoom in for you, intended to be listed as may be prescribed in consultation with the SEBI shall not be considered as listed companies. पहले इस just understand the crux of the first para. तो यहाँ पे ये वो बात कर रहे हैं कि yes, पहले जैसे आपने बोला था कि जो कंपनी लिस्टेड है with the recognized stock exchange वो तो लिस्टेड है ही, but in consultation with the SEBI अगर एक ऐसे क्लास ऑफ कंपनीज है जो हम लोगों ने उस डेफिनेशन से बाहर निकाले, तो ये कौन से क्लास ऑफ कंपनीज है वो अपने को चेक करने के। मैं आपको एक मोटा मोटा ये देता हूं कंसेप्ट। द आइडिया बिहाइंड दिस इज द companies which have been removed from the listed companies are the companies which go for private placement. Private placement के लिए अपन पब्लिक के पास नहीं जाते हैं, those are only within the members. So the SEBI ने ये बोला है कि अपने relaxation दिया in some manner that the companies which go for private placement and जितने shares listed हैं भैया वो listed company के definition में नहीं आएंगे। Now what is the impact of this? See, listed company को बहुत compliances है। SEBI, under SEBI, the LODR guidelines are very, very strict. So this is somewhat a relaxation to all those companies जो private placement करते थे और जिनके shares listed थे stock exchange में. Okay, we just go through the definition, the amendment. First is your public companies. The public companies which have not listed equity shares on recognized stock exchange but have listed their first is what? Non-convertible debt securities issued. मैंने वहां पे बोल्ड करके रखा है आपके लिए, that is private placement. इन टर्म्स ऑफ SEBI, तो ये एक हो गया। नेक्स्ट, अगर पब्लिक कंपनी क्या करती है, सेम नॉन कन्वर्टेबल रिन्यूएबल प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। तो पहले क्या था, इट वाज डिबेंचर्स प्रेफरेंस, सेम। सी वन पॉइंट प्लीज अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज प्राइवेट प्लेसमेंट। तो जहां पे भी वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, दे विल नॉट कम अंडर व्हिच डेफिनेशन, लिस्टेड कंपनी डेफिनेशन। गोइंग फॉरवर्ड प्राइवेट कंपनी को भी सेम है। तो अगर प्राइवेट कंपनीज प्राइवेट प्लेसमेंट पे क्या करती है, शेयर इश्यू करती है, स्टॉक एक्सचेंज पे इश्यू करती है, शेयर लिस्ट करती है, सो बॉस दे विल नॉट कम अंडर व्हिच डेफिनेशन, they will not come under the listed company definition. Okay, so this was your first thing. ये A और B clause थे। आपको यहाँ पे C clause भी दिखा देगा। So A और B clause में क्या था, एक बार रिवाइज करो। A में पब्लिक कंपनी था, C में प्राइवेट था, एंड B में एंड C में वापस क्या किया उन लोगों ने, the public companies which have not listed their equity share on a recognized stock exchange was, please see this, but whose equity shares are listed on a stock exchange in a jurisdiction as specified in subsection 3 of subsection 23. Boss, this is a prospective section. ये अभी तक implement नहीं हुआ है, but they have already done something. So what they have done is, if any company wants to list its shares outside India, so for example, NYSE, the New York Stock Exchange, the NASDAQ, तो आपको ये कंसेप्ट तो पता रहेगा ADR, GDR का। तो उसमें क्या होता है, we issue depository receipts. Okay, now the point here is if any Indian company goes outside India on any stock exchange, अगर वो वहां पे जाके लिस्ट करती है, तो क्या वो लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में आएगा? द आंसर इज नो। सो MCA ने क्लियर कट क्लैरिफाई किया है कि बॉस, इफ एनी इंडियन कंपनी वांट्स टू लिस्ट इट्स शेयर्स आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड द jurisdiction where we cannot go there, so yes, आपको लिस्टेड कंपनी के जितने भी कंप्लायंसेस है आपको फॉलो कर देने पड़ेंगे। ओके, सो दैट 3 क्लॉजेस व्हिच आई हैव कवर्ड इन लिस्टेड कंपनी। सो टू बी वेरी शॉर्ट, सी जस्ट पे अटेंशन, बिकॉज़ सी एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन हियर। ओके, आप क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। दिस PDF इज गोइंग टू फेच यू अ लॉट ऑफ मार्क्स। ओके, सो प्लीज कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करो व्हाट इसमें वो, क्योंकि सी पास्ट एग्जामिनेशन तो बहुत है, वी हैव अ लॉट ऑफ पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, बट दिस अमेंडमेंट के ऊपर दे विल फ्रेम अ न्यू क्वेश्चन, एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव द कांसेप्ट, द अमेंडमेंट इन योर माइंड। ओके, सो दिमाग में एक रखो, प्राइवेट प्लेसमेंट आउटसाइड लिस्टेड कंपनी, एंड इफ एनी इंडियन कंपनी लिस्ट आउटसाइड इंडिया, तो वो तो लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में आएगा। फेयर एनफ, सिंपल। ओके, चलो गोइंग फॉरवर्ड, स्मॉल कंपनी। ओके, तो स्मॉल कंपनी का सेक्शन नंबर क्या था, 2 सबसेक्शन 85। स्मॉल कंपनी का मतलब क्या है, छोटा कंपनी। छोटे कंपनी का डेफिनेशन ओल्ड में क्या था, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम है एंड उसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बट वेट, ये चेंज करके उन्होंने क्या कर दिया है, सो द नंबर हैज बीन चेंज फ्रॉम 50 लाख टू 2 करोड़, एंड दिस 2 करोड़ का चेंज होकर 20 हो गया। ओके, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस 2 numbers in your mind now, that is 2 crores and 20, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से कम है एंड इसका टर्नओवर 20 करोड़ से कम है। That's the new definition for small company. Okay. Next, section number 8.
चैप्टर 2 इन कॉर्पोरेशन कंपनी में क्या क्या अमेंडमेंट्स वो एक बार देख लेते हैं प्लीज. कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 8. सेक्शन 8 स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट इज फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. सो अगर कोई कॉन्ट्रावीन करता है सेक्शन 8 के कंपनीज के सेक्शंस के लिए, पहले इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन हुआ करता था, बट नाउ देयर इज नो इम्प्रिजनमेंट. फाइन इज मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 25 लाख. सो जैसे मैंने पहले आपको बोला, द इम्प्रिजनमेंट पार्ट दे हैव डन अवे विद नाउ. नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने सीए फाउंडेशन के में ये आपको बताया था, एंड दैट इज योर ओपीसी. ओके, रूल 3 सेक्शन ऑफ ओपीसी क्या है? टू सबसेक्शन 62 1% कंपनी. सो जस्ट टू गिव यू एन हाईलाइट what exactly is the history of this. Under 1% company, so one member is there who can incorporate. आपको nominee भी appoint करना पड़ता है. And remember one thing, these two had one thing in common, and that was what? 3 conditions थे जो common थे. First, you have to be a natural person, you have to be an Indian citizen, and you have to be an Indian resident. Okay, वापस एक बार explain करता हूँ. Natural person, Indian citizen, and Indian resident. But now what has happened is, जो थर्ड कंडीशन था, लिखता हूं मैं यहां पे, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन एंड इंडियन रेसिडेंट. बॉस, so if these 3 conditions are being fulfilled, then you can incorporate an OPC, और एक बंदा नॉमिनी बन सकता है अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो. बट वेट, व्हाट हैज हैपेंड नाउ टू बूस्ट द इंडियन इकोनॉमी? मेनी आउटसाइड पीपल, व्हाट यू मीन बाय आउटसाइड पीपल? द एनआरआईज, द नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाते थे, तो उनके लिए क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? एमसीएन ये बोल दिया, बहुत एक काम करते हैं, वी विल गो अवे, अपन ये निकाल देते कंडीशन. कौन सा? इंडियन रेसिडेंट वाला. नाउ सी, I want to tell you this amendment in a very different manner. So what has happened is, there's a bit of confusion going around, and that is the 182 days and 120 days wala criteria. So what has happened is, now as per the new amendment, only natural person is there and Indian citizen. Only natural person and Indian citizen. मतलब तीसरा condition तो क्या है? It doesn't matter whether you are Indian resident or not. Now Indian resident का definition fulfill करने के लिए हम लोगों को क्या fulfill करना था? That the person should stay in India for a period of 182 days in the preceding year. But they have done away with it now. बोले नहीं, हमको वो चाहिए नहीं है. It is immaterial. It is immaterial. So only natural person and Indian citizen. Those are the only 2 conditions left. तो क्या अपन दिन चेक करेंगे क्या? No, because it is clearly stated. And why was this thing? ये भी लिखा है मैंने यहाँ पे, किसके लिए था? Because NRI can also form OPC now. The non-resident Indian, क्योंकि भाई साहब वो तीसरा कंडीशन चला गया ना अभी. So this is one point. Now, if you see one more thing, in the same rule उन्होंने explanation दिया है. क्या explanation दिया है? The meaning of resident. तो पहले क्या था? 182 था, तो अभी 120 हुआ है. In my opinion, this 120 days is of no इंपॉर्टेंस फॉर कैलकुलेटिंग, फॉर डिसाइडिंग ओपीसी का फैक्टर. बस ओपीसी में बॉस 2 ही कंडीशन है अभी, दैट नेचुरल पर्सन होना चाहिए एंड इंडियन सिटीजन होना चाहिए. द इंडियन रेसिडेंट थिंग इज नॉट देयर नाउ. सो दिस इज ओनली फॉर योर रेफरेंस. आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हो कि बॉस इंडियन रेसिडेंट के लिए अभी दिन कितने हैं, व्हाट इज दिस बेस? तो इट इज 120 डेज एंड नॉट 182 डेज. ओके, चलो गोइंग फॉरवर्ड. रूल 3 सेम ओपीसी का ही है, बिकॉज़ ओपीसी में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं एंड व्हिच आर इजी आल्सो, एंड दे विल पुट अ क्वेश्चन ऑन ओपीसी. इट इज 100% sure they will put a question on OPC. Okay, so voluntary conversion of OPC. So first, what is to happen? If any OPC company, if they wanted to convert into any other form of company except Section 8, they needed to wait for 2 years. 2 साल तक रुको, 2 साल के बाद तुम क्या करो? कन्वर्ट करो. 2 साल के अंदर करने का है तो उसके लिए भी कंडीशंस थे. तो पहले we'll go one by one. Okay, so they could not be converted unless 2 years have expired. अभी ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सर हम लोग ने इन ओपीसी निकाला और सर 2 दिन में हमको चेंज करने का, बिंदास चेंज करो. देयर इज नो कंडीशन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, ओनली तुमको रिलैक्सेशन दिया गया है. इट इज इंडिपेंडेंसी, यू कैन चूज. आपको जाने के प्राइवेट में जाओ,
तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा है, यू डोंट नीड टू वेट फॉर 2 years. You don't need to satisfy condition of paid up share capital and turnover. No, you can do it. There's no restriction now. Next. Rule 3, continuing. If paid up share capital becomes more than 50 lakhs or average turnover becomes more than 2 crores, there was what? Compulsory conversion. Compulsory conversion मतलब फिर सुनो, अगर आपका 50 लाख या 2 करोड़ से ऊपर टर्न हो जाता है तो पहले कंपल्सरी कन्वर्जन है, बिकॉज यू विल नो लॉन्गर बिलोंग टू द ओपीसी कैटेगरी, बट नाउ इट इज नॉट लाइक दैट. So there is no compulsion of conversion now. The point is आपको complete independence दिए. It is completely in your hands. When you want to convert, it is in your hands. There is no restriction whatsoever of 2 years and all. There is no limit. There is no turnover limit. Nothing. Okay. Going forward, Chapter 3: Prospectus and allotment of security. Remember one thing. I am covering every minute section. Okay. So you won't need to study also afterwards. सिर्फ इतना एक बार आपने फुल वीडियो देखा ना स्टार्ट टू एंड, आपके दिमाग में बैठ जाएगा. मैं वापस रट्टा मत मारो, जस्ट प्रोसीड कि क्या हुआ है, व्हाट हैज हैपेंड. ओके, दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस ऑन दिस, आपके एमसीक्यू में भी और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में भी. ओके, चलो. नाउ सेक्शन 26, issuance of prospectus and contravention of section 26. So when any company issues prospectus, they have to follow certain guidelines. All the material information has to be disclosed. How many shares, the number of shares, the amount, everything. अगर आप ये कॉन्ट्राविन करते थे तो आपको imprisonment और फाइन था, बट एज आई सेड द imprisonment part is not there now, so there is no imprisonment now, and minimum 50,000, max 3 lakhs आपको फाइन बैठेगा. ओके, नेक्स्ट सेक्शन 40, सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट विद इन स्टॉक एक्सचेंज. उसमें अगर डिफॉल्ट होता है तो अगर आप जब सिक्योरिटी लिस्ट करते हो कोई स्टॉक एक्सचेंज पे एंड देयर यू डू एनी कॉन्ट्राविन, वहां पे कुछ डिफॉल्ट हो जाता है, सो सेम इम्प्रिजनमेंट था, एंड ऑफिशियल डिफॉल्ट को भी क्या था, इम्प्रिजनमेंट हुआ करता था. सो नाउ देयर इज नो इम्प्रिजनमेंट फॉर द ऑफिशियल डिफॉल्ट, ओनली फाइन मिनिमम 50,000 एंड मैक्सिमम 3 लाख. जैसे ऊपर था वैसे ही आगे कंटिन्यू किया गया है. जहां पे मैं सर्कल करो, दोज आर द पॉइंट व्हिच यू शुड नोट, दैट इज नो इम्प्रिजनमेंट. नेक्स्ट सेक्शन 48, सेक्शन 48, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स. सो पहले पनिशमेंट हुआ करता था. व्हाट इज वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स? सी रिमेंबर वन थिंग. सो देयर आर अ लॉट ऑफ क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर्स. ओके, सबके अलग अलग राइट होते हैं. तो फॉर एग्जांपल डिबेंचर हैज इंटरेस्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैज डिविडेंड, उनके सबके राइट्स फिक्स होते हैं, वोटिंग राइट्स आर फिक्स्ड. सो पहले अगर पनिशमेंट यहाँ पे कुछ नॉन कंप्लायंस होता है, वहां पे पनिशमेंट था. सो नाउ इट इज नॉट देयर एट ऑल, देयर इज नो, इट इज कंप्लीटली ओमिटेड. नाउ रिमेंबर वन थिंग, जहां पे भी पनिशमेंट ओमिट हुआ है, सो व्हाट यू विल थिंक इन दिस फैशन कि नहीं यार सर पनिशमेंट ओमिट हुआ है मतलब क्या, मतलब लोग तो अभी डिफॉल्ट करेंगे ही ना. जब कुछ कंपनी डिफॉल्ट करती है, शेयर होल्डर्स के राइट्स में कुछ वेरी करती है, तो इट्स नो पनिशमेंट एट ऑल. नो, ऐसा नहीं है वो. सी रिमेंबर वन थिंग, इन कंपनीज एक्ट देयर इज अ रेसिड्यूअल सेक्शन आल्सो, देयर इज रेसिड्यूअल पनिशमेंट आल्सो. अगर कहां पर एक जनरल पनिशमेंट भी है कंपनी एक्ट में. ओके, सो ये स्पेसिफिक पनिशमेंट ओमिट किया उन लोगों ने. ओके, नेक्स्ट सेक्शन 56, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज. सो अगर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज में या ट्रांसमिशन मतलब क्या, सक्सेशन वाइज ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, इसमें कुछ कॉन्ट्राविन होता है. शेयर सर्टिफिकेट में कुछ कॉन्ट्राविन होता है, आपने शेयर सर्टिफिकेट दिया नहीं शेयर होल्डर को, तो पहले फाइन फॉर कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट को इम्प्रिजनमेंट था. अभी सिर्फ क्या है, देयर इज ओनली वन स्ट्रेट पेनल्टी एंड दैट इज 50,000 फॉर बोथ. ओके, विषय एंड, देयर इज नथिंग मोर देन दैट. सेक्शन 59, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. सो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स सेक्शन 88. ओके, तो उसमें punishment for default in compliance with the order of tribunal, that is your NCLT, it is completely omitted now. Okay, there is no punishment if there is any contravention in the rectification with respect to register of members. This is very important. Section number 62, please pay attention. ये तुम्हारे right issue का है. Okay, I just zoom in for you. Time limit given in notice for further issue of share capital. What is the meaning of this? इसका background पहले सुनो. So पहले क्या होता था, if any company wants to issue further issue of capital, जिसको अपन right shares बोलते हैं, तो right shares के लिए there was a gap which was supposed to be open. मतलब भाई साहब तुमको पहले पूछेंगे ना वो कि तुमको सब्सक्राइब करने का, वो कंपलसरी थोड़ी है. If I am a shareholder और मुझे कंपनी एक राइट इशू का ये तेरा ऑप्शन है, तो मेरे ऊपर है. I can accept it, I can renounce it, I can cancel it also. So it was minimum 15 days and maximum 30 days. That was the old provision. New provision के हिसाब से minimum 15 days or lesser number as prescribed. कितना prescribe किया है? No, it is completely at to their discretion. So it might be 5 days, it might be 6 days also. It is completely there. So वो 15 days से कम भी ला सकते थे.
Okay, now they can bring it low also. So 5 to 30 हो सकता है, 4 to 30 हो सकता है, as may be prescribed. Okay, that is one thing which you should check, and it is very important. Next, section 64. Notice to be given to registrar for alteration of share capital. For alteration of share capital. First, company in the office in default 1,000 per day, maximum 5 lakh ये था. So basically, आपका जब भी शेयर कैपिटल अल्टर होता था, you need to intimate the registrar. आपको एक नोटिस देना पड़ता था आरओसी को. अगर नहीं देते थे तो पहले ये वाला क्या था, आपको पेनल्टी फाइन था. अभी क्या है, नाउ इट इज 500 per day, maximum 5 lakh for the company and 1 lakh for the officer in default. अलग अलग किया उन लोगों ने. Okay, make sure you take a note of that. Next, section 66, reduction of share capital. Punishment for failure to publish the order of confirmation of reduction of share capital. अगर आपका शेयर कैपिटल रिडक्शन होता था तो आपको पहले क्या करना पड़ता था, आपको पहले एक नोटिस देना पड़ता था. यू नीड टू पब्लिश इट, द ऑर्डर फॉर कंफर्मेशन फॉर शेयर. अभी वो ओमिट कर दिए. There is nothing as such now. Okay, so this has completely been omitted. Section 68. Now this relates to what? Buyback. This relates to buyback. देखो क्या है, power of company to purchase its own securities, punishment for default and compliance. Now if you can recollect, buyback के लिए बहुत सारे compliances थे. You need to hold a meeting, you need to take the approval if you cross the line. But now there is no imprisonment, there is only fine. Minimum 1 lakh, maximum 3 lakh. Remember one thing, now it's become very easy for you. अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, ऊपर से नीचे तक ये मिनिमम 1 लाख एंड मैक्सिमम 3 लाख ही आ रहा है. सो नाउ इट हैज बिकम वेरी इजी टू रिमेंबर द फिगर्स. नेक्स्ट, सेक्शन 71, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट इन कंप्लायंस विद द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल. ओके, अगर आप डिबेंचर्स रिडीम करते हुए कुछ प्रॉब्लम होता है, you don't redeem it on time. Okay, so there was a punishment if अगर आप NCLT के हिसाब से कुछ नहीं करते हो तो. So now even that has been omitted. So आप देख सकते हो there have been so many relaxation. जो specific penalties के क्या थे, sections थे, वो सब omit कर दिए उन लोगों ने. Registration of charges, chapter number 6. Pay attention please. जहां पे important है मैं वहां पे mark करूंगा. Okay, pay attention. Section 86. Punishment for contravention of chapter of charges. पहले क्या था, फाइन था कंपनी पे मिनिमम 1 लाख एंड मैक्सिमम 10 लाख. नाउ इट इज पेनल्टी ऑन बोथ द कंपनी एंड द ऑफिसर इन डिफॉल्ट. कितना, 50,000 स्ट्रेट. नेक्स्ट, ऑफिसर इन डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट था पहले 6 मंथ्स का, और उसको 25,000 का ये भी था मिनिमम, एंड मैक्सिमम 1 लाख. बट अभी क्या है, इट इज ओनली फाइन. देयर इज नो इम्प्रिजनमेंट, देयर इज नो इम्प्रिजनमेंट. तो बॉस, expect a question. ICA will check over here. Institute check करेगा. यहाँ पे क्या चेक करेगा कि तुमको ये मालूम है क्या. So एक दिमाग में डाल दो कि भाई साहब imprisonment का जो भी क्लॉज था वो सब कुछ उन्होंने क्या कर दिया है, निकाल दिया. Okay, next. Okay, pay attention. Chapter 7, management and administration. Pay attention please. Section 88, subsection 5. Default in maintenance of register of members or debenture holders. जो रजिस्टर होता है सेक्शन 88 का, आपने अगर वो डिफॉल्ट किया, अगर आपने सेक्शन के हिसाब से नहीं किया, कंप्लाई नहीं किया आपने, तो पहले क्या होता था, फाइन ऑन द कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट मिनिमम 50,000 एंड मैक्सिमम कितना था, इट वाज 3 लाख एंड फॉर द 1,000 फाइन था पर डे. बट नाउ इट इज पेनल्टी ऑन द कंपनी 3 लाख एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट 50,000 स्ट्रेट अवे. ओके, देयर इज नथिंग एज सच 1,000 पर डे. सीधा 50,000 को उन्होंने क्या कर दिया है, पेनल्टी लगा दिया है. 89.5, failure to make a declaration by the beneficial register or owner or change, और कुछ चेंज करते हो आप तो फाइन मैक्सिमम 50,000, फर्दर 1,000 पर डे. ये ओल्ड प्रोविजन था, अभी क्या कर दिया, इट इज पेनल्टी इज 50,000 मैक्स एंड फर्दर पेनल्टी इज 200 पर डे, मैक्सिमम ऑफ 5 लाख. ओके, व्हाट इज दिस, अगर आप कुछ डिक्लेयर करने के लिए क्या करते हो, आप फेल करते हो. रिमेंबर वन थिंग, if there is a beneficial shareholder, see what happens is there are two types of person, one is the registered holder, one is the beneficial holder. इसके compliances है, the company has to intimate, company को intimate करना पड़ता है, अगर नहीं होता है तो there is a penalty. 89.7, filing of return by company with respect to declaration to ROC. Okay, आपको ROC को documents अगर आपने submit नहीं किए रिटर्न के, so fine on the company and officer in default. पहले क्या हुआ करता था, minimum 500, maximum 1,000, further 1,000 per day. So boss, right now it is what, penalty on the company and officer in default 1,000 per day,
maximum 5 lakh for the company and 2 lakh for the officer in default. So this is the new penalty. Next, 8911 exemption for declaration respect of beneficial interest. तो ये जो सेक्शन है पहले तो ये न्यू वाला सेक्शन है, बिकॉज ये जो पावर है वो एक्सक्लूसिव पावर देके रखा है खुद को सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हम लोग को जब चाहे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एग्जेम्प्ट सच क्लास ऑफ कंपनी. देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट एनी क्लास from complying with any of the requirements of this section except subsection 10 if it is considered necessary to grant such exemption in the public interest, and any such exemption may be granted either unconditionally or subject to such condition as may be prescribed. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है किस कंपनीज को एक्सक्लूड करने का फ्रॉम दीज सेक्शंस. ओके, नेक्स्ट सेक्शन 90 सबसेक्शन 10 फेलियर टू गिव डिक्लेरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप. सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप, अगर आपने ये डिक्लेरेशन नहीं दिया सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप का, तो पहले क्या हुआ करता था, इम्प्रिजनमेंट था, मैक्सिमम 1 ईयर, फाइन मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 10 लाख, फर्दर 1000 पर डे. बट नाउ इट इज स्ट्रेट शॉट. मैं वापस बोला को ये अमाउंट सेम मारे जो स्ट्रेट शॉट के अमाउंट से 50,000, इट इज कमिंग अगेन फर्दर पेनल्टी ऑफ 1000 पर डे, मैक्सिमम रुपीज 2 लाख. दिस इज द न्यू पेनल्टी. ओके, नेक्स्ट सेक्शन 9011 इंपॉर्टेंट है. Failure by reporting company to maintain register of beneficial significant owner, that is the SBO. Okay, अगर आपने ये मेंटेन नहीं किया बेनिफिशियल ओनर का रजिस्टर, तो पहले क्या हुआ करता था, फाइन ऑन द कंपनी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 50 लाख एंड फर्दर मैक्सिमम 1000 पर डे. ये ओल्ड था. न्यू वाले में कंपनी 1 लाख, फर्दर पेनल्टी ऑफ 500 पर डे, मैक्सिमम 5 लाख, the officer in default को 25,000 and further penalty of 200 per day, maximum of 1 lakh. देखो 1000 यहाँ पे, तो यहाँ पे 200 कर दिया है. So you need to put this in your mind. Okay, pay attention. Next, 26, 92 subsection 1 particulars of annual return. Pay attention please. उसके indebtedness के बारे में था clause C. If you remember, clause C was of indebtedness. So now it has been completely omitted. So you don't need to show indebtedness over there now. Next, 92(1). Please pay attention. ये बहुत बड़े बड़े अमेंडमेंट्स हैं एनुअल रिटर्न में. क्लॉज जे. क्लॉज जे पहले किसके बारे में बात करता था कि भाई साहब अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कुछ होल्डिंग है, तो आपको डिटेल्स देने पड़ते थे, कौन है, नाम क्या है, कितना नंबर है, हाउ मेनी शेयर्स आप टेकन. सी डिटेल्स ऑफ शेयर्स बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स indicating name, address, registration, shareholding, etc. But right now, see, details of shares by foreign institutional investors. मतलब अभी आपको इतना डिटेल्ड में प्रोविजन नहीं देना पड़ेगा उनके केस में. So, for example, आपको सिर्फ अमाउंट देना पड़ेगा. So only छोटा मोटा डिटेल्स आपको देना पड़ेगा. डिटेल्ड में जाके उनके बारे में डिटेल्स देना नहीं पड़ेगा आपको. Okay. Next, even this is important. Please mark this important. Abridged form of annual return. Hey, what is the meaning of abridged? अब्रीच का मतलब होता है नॉट टोटल, ड्राफ्ट स्टेज, डिटेल्ड में नहीं होता है. इट्स द न्यू प्रोविजन, द न्यू प्रोविजन. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब अब्रीच फॉर्म ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी सच अदर क्लास ऑफ कंपनीज एज मे प्रिस्क्राइब. तो मैंने यहाँ पे आपका फॉर्म नंबर लिखा है MGT 7A. रिमेंबर वन थिंग, एनुअल रिटर्न आपका MGT 7 है, वो तो भरना पड़ता है. बट व्हाट अबाउट द अदर कंपनीज? जो आपका OPC है, जो आपका स्मॉल कंपनी है, इनके लिए क्या है? सो इनके लिए इट इज MGT 7A. इट इज MGT 7A. MGT 7A. ओके, उनको लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ MGT 7A एंड इट्स दैट इज आल्सो नोन एज अब्रिज्ड फॉर्म ऑफ एनुअल रिटर्न. नेक्स्ट, सेक्शन 92(5) फेलियर टू फाइल एनुअल रिटर्न. Failure to file annual return. Penalty on the company, the old provision was 50,000 for the officer in default and penalty for 100 per day, maximum 5 lakh. Now what it is? Penalty on the company and officer in default 10,000 and further penalty of 100 per day, maximum 2 lakh for the company and 50,000 for the officer in default. Section 92 subsection 6. CS certifies annual return in contravention. So the company secretary has to certify द एनुअल रिटर्न. अगर वो कुछ कॉन्ट्रावीन करता है, वो कंप्लाई नहीं करता है, वो कुछ गलती करता है, ओके, नोइंग इंटेंशनली, तो पहले क्या था, 50,000 का फाइन था, मैक्सिमम 5 लाख. बट नाउ इट इज पेनल्टी ऑफ स्ट्रेट पेनल्टी ऑफ 2 lakhs. नो मिनिमम एंड नो मैक्सिमम. ओके, नेक्स्ट 105 subsection 5 authorizing form specifying proxy names.
प्रॉक्सी नेम्स में ऑथराइजेशन जो फॉर्म होता है उसमें कुछ कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो पहले क्या होता था, फाइन ऑन द ऑफिसर मैक्सिमम 1 लाख. नाउ देयर इज अ स्ट्रेट शॉट ऑफ पेनल्टी ऑफ 50,000 अगर कुछ कॉन्ट्रावेंशन होता है. कहां पे? प्रॉक्सी नेम्स में, फॉर्म्स में. You know one thing, proxy forms were submitted 48 hours before the meeting. Okay. Next, section 117 subsection 2. What is this? Failure to file resolution or agreement. So what is resolution, what is agreement? So for example, if there are any resolutions, for example your board resolution, your special resolution, so according to Companies Act 13, अगर आपको ये फाइल करने के हैं आरओसी के पास, आपने ये फाइल नहीं किए तो पहले क्या हुआ करता था? फर्स्ट इट वाज penalty, company minimum 1 lakh, further penalty of 500 per day, officer in default, and further penalty of 500 per day, maximum 5 lakh rupees. Now what it is? Company के लिए 10,000, further penalty of 100 per day, maximum 2 lakhs तक, and the officer in default जिसने वो गलती की है 10,000 and further penalty of 100 per day, maximum of 50,000 rupees. Next. 117 subsection 3. Non-applicability of filing of resolutions of section 179, proviso after clause G. Now see what is this. Non-applicable to resolution under section 173F in ordinary course of business by banking company. Boys and girls. देखो पहले क्या हुआ करता था. So first, what should happen is, see now resolution needs to be filed, needs to be updated with the register of companies. But can you imagine banking company? तो banking company को पहले क्या कर दिया था? Exclude किया था. क्यों exclude किया था? अरे उनका everyday का काम है. उनको दिन में रेजोल्यूशंस कितने पास करने होते हैं, ऑर्डनरी, स्पेशल. सो एवरी नाउ एंड देन दे कैन नॉट गो टू आरओसी एंड फाइल इट. तो उसको पहले एक्सक्लूड किया था बैंकिंग वालों को कि बॉस बैंकिंग वालों को वो सेक्शन एप्लीकेबल नहीं. कहा का? द इंटीमेटिंग द रेजोल्यूशंस का. बट जो बाकी के दो थे, यो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, उन्होंने बोला हमने क्या खराबी की है, हम भी तो उसी सेक्टर में आते हैं, हम लोग को एक्सक्लूड नहीं किया उन लोगों ने, तो हमको हर रोज जाना पड़ता है वहां पे रजिस्ट्रार के ऑफिस पे ये अपडेट करने के लिए, हमको भी एक्सक्लूड करो. तो उनकी बात यहाँ पे क्या किया उन लोगों ने मानी, एंड इवन दिस एंड दिस ये क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया नाउ एज पर न्यू प्रोविजन. ओके, तो न्यू प्रोविजन बैंकिंग के साथ और दो ऐड कर दिए, एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी. कूल. नेक्स्ट चैप्टर, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड. छोटा मोटा एक ही है सिर्फ उसमें. 124 सबसेक्शन 7, फेलियर टू कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट ऑफ अनपेड डिविडेंड अकाउंट. So as you all know, within 30 days आपको क्या करना पड़ता है? You need to pay the dividend after declaration. You need to transfer it also to the unpaid dividend account. तो पहले क्या था? Fine on the company minimum 5 lakh, maximum 25 lakh on officer in default, and minimum 1 lakh and maximum 5 lakh किसके लिए? Officer in default के लिए. Now what it is? अगर आप unpaid dividend account में नहीं ट्रांसफर करते within the specified days, penalty अभी कितना है? 1 lakh, further penalty of 500 per day, maximum 10 lakh, और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट जिसको वो बोला गया था वो 25,000 एंड मैक्सिमम 2 लाख, दैट इज 100 पर डे तक जा सकता है. मैक्सिमम 2 लाख के ऊपर जाएगा नहीं. ओके, ये था डिविडेंड का छोटा मोटा ये अमेंडमेंट है. ओके, नाउ इंपॉर्टेंट है. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन, एक्सपेक्ट द क्वेश्चन इन दिस. ओके, सेक्शन 128 सबसेक्शन 6, विल सी अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में क्या हुआ है. कॉन्ट्रावेंशन और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. पहले इम्प्रिजनमेंट और फाइन. पहले इम्प्रिजनमेंट था अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लाई नहीं किया एज पर द सेक्शन. अभी क्या है? देयर इज नो इम्प्रिजनमेंट. फाइन मिनिमम 50, मैक्सिमम 5 लाख. ओके, मेक श्योर यहाँ पे 3 लाख नहीं, यहाँ पे 5 लाख है. ओके, मेक श्योर ऑफ दैट. नेक्स्ट very important. MCA is so smart and they have got the correct amendment. Now see what is this? Rule 3. Manner of books of accounts to be kept in electronic mode. See, as you all know, books of accounts can be maintained in electronic mode also. ये हम सबको मालूम है. But what used to happen? People used to manipulate them. Entry delete कर दिया, पीछे जाके entry मारा. So all these accounting softwares, they were doing all this stuff. So MCA ने very cleverly got this amendment. See what the amendment is. It's a new proviso, so please expect a question on this. It is important. So after 1/4/2022, sir wait, तो ये तो आप 1/4/2022 लिखा है, इसका मतलब अभी तो नहीं है. हाँ, अरे उन लोग को ब्रीदिंग स्पेस दिया ना. अगर अभी लगा देते हैं सबका वाट लग जाता. फिर तुम लोग बोला कोई बात नहीं, हम लोग तुम्हारा वाट लगाएंगे, पर कब लगाएंगे? 1/4/2022 के बाद. क्या लगाएंगे? पढ़ेंगे.
इफ यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, भाई साहब तुम कौन सा भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, एग्जाम्पल तुम टैली यूज कर रहे हो, तुम ओरेकल यूज कर रहे हो, ओके, एसएपी, यू आर यूजिंग एनीथिंग, मेक श्योर आपके पास ऑडिट ट्रेल है. देयर इज अ ऑडिट ट्रेल फीचर व्हिच कैन बी डिसेबल्ड एंड एडिट लॉग भी होना मांगता. अरे बाप रे, दो चीजें. ओके, पे अटेंशन. सो आपके पास जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें दो चीजें होनी चाहिए. क्या? वन, देयर हैज टू बी अ ऑडिट ट्रेल लॉग फीचर. एंड दिस फीचर वो कभी भी डिसेबल कर नहीं पाएंगे, ऐसा चाहिए आपके पास. एंड देयर हैज टू बी अ एडिट लॉग फीचर ऑल्सो. So what is the meaning of this? What is this accounting software? What is this audit trail log feature? देखो, आप सबको तो call logs तो पता है. So whenever we call someone, so basically what you can do is the control is completely in your hands. You can either delete it, you can edit it, but that is not happening over here because now MCA ने clear cut instructions दिए. You use any accounting software, we don't care. The one thing which we care about is this, that is the audit trail log feature. मतलब भाई साहब तुमने जो एंट्री मारी है ना, उसका पूरा सोर्स मांगता हम लोग, कहां से आया है, अपने कहां से उठाया है, वो अमाउंट कहां से है. So even if you delete it, even if you edit it, we want the edit log also of that. आप अभी कुछ नहीं कर सकते. मतलब see, now they have embedded over here only. It's a new provision, okay, please. और ये कब से एप्लीकेबल है? 1/4/2022 से एप्लीकेबल है. Okay, so please keep this in your mind. For every change में तुम कुछ भी करो, हमको वो दो फीचर चाहिए तुम्हारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में. Okay, now this was rule 3. Next, section 129A, ये इंपॉर्टेंट है, अब इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं मैं. Next, periodical financial results, new section inserted. देखते क्या है, pay attention please. Central government may require prescribed class of unlisted companies. So what is unlisted? क्या एक्स्ट्रा लेके आए लोग, देखो, now pay attention. See, to prepare the financial results of the company such periodical basis and such prescribed to obtain approval of the board and complete audit on the limited review. Whenever you will start your articleship, okay, you will come across this LR. So remember one thing, there is statutory audit and there is limited review. अगर आप स्टैट ऑडिट नहीं कर पाओगे तो आपको एलआर तो कम से कम करना ही पड़ेगा. मतलब रिव्यू तो करना पड़ेगा भाई साहब, ऑडिट मत करो, रिव्यू तो करो, लिमिटेड रिव्यू. सो दिस इज कंपल्सरी फॉर होम अनलिस्टेड कंपनीज. This is the new thing. To obtain approval of the board and complete the audit or LR of such periodical financial results in the manner prescribed. This is one important amendment. And then file a copy with the ROC within 30 days of completion of the relevant period with the fees as prescribed. आपको किसके पास फाइल करना पड़ेगा, ये ROC के पास फाइल करना पड़ेगा within 30 days. Next, 134 subsection 8. Default in preparation and signing of board's report और फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर अपने बोर्ड रिपोर्ट या अगर आपने साइन करने में कुछ डिफॉल्ट कर दिया तो पहले क्या हुआ था, देयर वाज कंपनी के ऊपर मिनिमम 50,000 मैक्सिमम 25 लाख. जिसने ये ऑफिस एंड डिफॉल्ट ने गलती किया उसके लिए कितना था, इम्प्रिजनमेंट था मैक्सिमम 3 इयर्स, फाइन भी था मिनिमम 50,000 मैक्सिमम 5 लाख. नाउ जैसे मैंने आपको बोला है, इम्प्रिजनमेंट चला गया, दिस पेनल्टी 3 लाख का एंड ऑफिस डिफॉल्ट के लिए फ्लैट कितना है 50,000, नो मिनिमम नो मैक्सिमम ओवर देयर. Next, rule 8, matters to be included in the board's report. Okay, so board report में बहुत सारे मैटर इंक्लूडेड होते हैं. New clause 11 and 12 under sub rule 5 has been inserted. देखते हैं कौन सा न्यू रूल उन्होंने ये किया है इंसर्ट. बोर्ड रिपोर्ट में जो पहले मैटर्स थे वो तो इंक्लूड होने ही वाले हैं, ये एडिशनल है. Details of application made on any proceeding pending under the IBC. What is IBC? Insolvency and Bankruptcy Code. Details of difference between the amount of the valuation done at the time of one-time settlement and the valuation done while taking loan from banks or financial institutions along with the reasons thereof. What is the meaning of this, sir? तुम्हारे बोर्ड रिपोर्ट में if there is any concern relating to insolvency and bankruptcy, anything, we want complete details of that in your board report. If the company is insolvent,
and there's some litigation, there's something pending in the court of law with the NCLT, we want all the details. तो पहले बोर्ड रिपोर्ट में आपको देना नहीं पड़ता था, पर आपको अभी देना पड़ेगा. Section 137 subsection 3, failure to file copy of financial statement. So अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना तो कॉपी देना अगर आप भूलते हो, कॉन्ट्रावीन करते हो, आपने नहीं कर दिया फाइल, देयर वाज अ पेनल्टी ऑफ 1000 पर डे, मैक्सिमम 10 लाख. जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट इसको दिया था उसके लिए 100 पर डे, मैक्सिमम 5 लाख. ये ओल्ड था. न्यू वाले में क्या है? पेनल्टी ऑन द कंपनी कितना है? 10,000 फ्लैट फॉर द 100 पर डे, मैक्सिमम ऑफ 2 लाख. ओके, तो बाद में फिर से कॉन्ट्रैक्ट में होता है तो मैक्सिमम 2 लाख के ऊपर नहीं जाएगा आपका. एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 110,000 फॉर द 100 पर डे एंड मैक्सिमम 50,000 rupees. Okay. Okay. Now, most important, and that is your CSR. Okay. Remember one thing: corporate social responsibility mein there have been a lot of big amendments. Okay. In my opinion, there will be a question on this. There will be a question on your corporate social responsibility. Okay. See, section 135. Section 135 पहले क्या बोलता है? CSR का मतलब क्या है? अंडरस्टैंड द क्रक्स फर्स्ट. सीएसआर का मतलब ये है, तुमने बॉस इंडियन सॉइल पे सोसाइटी की वजह से तुमने प्रॉफिट कमाया. वॉट एवर यू आर अर्निंग, किसकी वजह से? वो सोसाइटी की वजह से. यू हैव ए ड्यूटी, ए मॉरल ड्यूटी टुवर्ड्स द सोसाइटी. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक मोटा मोटा उसका एक जस्ट ओवरव्यू है. बट बहुत कंप्लाइंस होते हैं उसमें यार. देयर आर लॉट ऑफ कंप्लाइंसेस. यू नीड टू सेट अप अ कमिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल कमिटी सेटअप करने के बाद यू नीड टू स्पेंड 2% ऑफ जो भी आपका अमाउंट आता है ऑफ द एवरेज 3 years. अगर वो अनस्पेंट होता है, देयर वर सम कंडीशंस, यू नीड टू ट्रांसफर इट टू द फंड. यू नीड टू स्पेंड इट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल नंबर 7. भाई सब में चेंजेस है. क्या क्या है? आई टेल यू, इट्स वेरी सिंपल. ओके, जस्ट स्टिक विद द वीडियो. एक्सपेंडिचर ऑन सीएसआर. सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग आई वांट टू क्लियर इज सी. इट्स वेरी सिंपल. ओके, 2% net profit during immediately preceding 3 financial years. तो ये तो मालूम है हमको, इसमें क्या नया भाई? ये तो मालूम है, ये ओल्ड है ना. न्यू में क्या है देखो, 2% net profit during the immediately 3 preceding financial years. सर काय विशेष में ये सेम ऐसा करते हैं? नहीं. If the company is not completed 3 years, average of such preceding years, अपन वही करते हैं. अरे बाबा, तो अगर कंपनी को 2 ही साल हुआ है, अपन क्या करेंगे? अरे 2 साल का एवरेज निकालेंगे. तो ये पहले इंप्लाइड इन नेचर था. अपन प्रिज्यूम करते थे, हाँ अरे 3 साल नहीं है क्या, 2 ही साल है क्या, तो 2 साल का निकालो. अपन ये बात करते थे, इंप्लाइड था वो. बट भाई साहब अभी उन्होंने बोल ही दिया, वो उन्होंने क्या कर दिया, वो एक्सप्रेस कर दिया है. तो मुझे एक बताओ, इसमें कुछ है क्या? नो, देयर इज नथिंग. ओनली टोल्ड कि अगर 3 साल से कम है, इट इज एक्सप्रेस, तो 2 साल का निकालो तुम, कोई बात नहीं उसमें. ओके, नेक्स्ट सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 सेकंड प्रोविजन. Failure in spending the amount of CSR. Oh my God. Okay. तो पहले क्या हुआ था? Only reporting in the board's report needed. तो अगर आप आपका CSR अमाउंट स्पेंड करने में you are not satisfied over there. मतलब for example आपका कैलकुलेशन after 2% comes to 20 crore and you spend 18 crores. 2 crores are still left. You need to mention in your board's report कि हमारा 2 करोड़ अभी भी हमने खर्चा किया नहीं. Okay, done. Old provision. New. नाउ इन एडिशन, डिलीट किया क्या उन लोगों ने? नहीं, डिलीट नहीं किया. वो बोर्ड रिपोर्ट में डालने का ये तुमको. अनलेस द अनस्पेंड अमाउंट relates to any ongoing project referred to in subsection 6, transfer such unspent amount to a fund specified in schedule 7 within a period of 6 months from the end of within a period of 6 from the end of expiry of financial year. So what is this? So first of all, you need to understand one thing, and what is that? What is the meaning of ongoing project? ये ongoing project का मतलब क्या है? Okay, now pay attention. I have written this here. Just give me like 1 second. Let me just go there in the definitions. CSR का अलग ही नीचे किया है. Net profit ongoing project. Okay, so here it is. Rule 4.2i ongoing project. Ongoing project. Okay, pay attention please. फिर अपन वापस ऊपर जाएंगे so that we just see this. Okay, what is this? So it means a multi-year project undertaken by a company in fulfillment of its CSR obligation having timelines not exceeding. One second, what is happening? Not exceeding 3 years. इसका मतलब क्या है? 1-3.
you have a project in your hand which won't go beyond 3 years. Now that's an ongoing project according to the definition. Okay, now we go upar, we go up again where it we were there. Oh, so यहाँ पे क्या लिखे हम लोगों ने, अगर आप अनस्पेंड करते हो कुछ अमाउंट, जितना भी अमाउंट बाकी है आपका, and if it does not relate to the ongoing project, does not बोल रहा हूं, does not relate to ongoing project, आपको 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, फंड में डालना पड़ेगा as prescribed in schedule number 7. Sir, if it relates to the ongoing project, उसके लिए 30 days है. अभी मैं आऊंगा उसके ऊपर. Even that definition, that amendment is also covered. Okay, pay attention. Section 135(5) second provision. Set off if spent excess amount on CSR. न्यू वाला ये नया है वो क्या, अरे आपने हद से ज्यादा स्पेंड कर लिया तो आप सेट ऑफ कर सकते हो कि आपने ज्यादा स्पेंड किया है. द कंपनी स्पेंड्स एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ज्यादा आपने एक्सेस किया है. Such company may set off such expense excess amount against the requirement to spend under the subsection for such. They can set it off because they have spent it extra more than what is required. तो set off कर सकते हैं वो. Now this section 135(6) is बराबर वो अपने 6 महीने वाला पॉइंट. तो 6 महीने वाला जो पॉइंट था वो not relating to ongoing project था. And what is this? Amount unspent on the ongoing project. So if I want to make a chart, पहले पढ़ता हूं मैं फिर चार्ट मारता हूं, ठीक है. Can be transferred within 30 days from the end of the financial year to a special account in any scheduled bank to be called as unspent corporate social responsibility account. Okay. Such amount to be spent by the company within a period of 3 financial years from the date of such transfer, failing which the company shall transfer the same to a fund specified in schedule number 7. They're talking about the upward fund only, within 30 days on the date of completion of the 3rd year. Okay. So basically, if the company has unspent balance in CSR, तो इसमें क्या होने वाला है मुझे बताओ. There will be two things. पहले आपको क्या पूछना पड़ेगा, फर्स्ट ongoing project and not ongoing project and not ongoing project. If it is not ongoing project, तो यहां पे 6 months का क्राइटेरिया. अगर ongoing project है यहां पे 30 days का क्राइटेरिया. ओके, सो सी आई जस्ट शो यू आल्सो वेयर इट इज. जो अपने ऊपर पड़ा था यहाँ पे ये विदिन 6 months फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आपको क्या करना पड़ेगा, फंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा. 6 months फ्रॉम द एक्सपायरी, 6 months फ्रॉम expiry of financial year, transfer to a fund as schedule 7. ओके. अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ले लो, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मैंने बताया आपको मीनिंग क्या है. ओके, आपके हाथ में प्रोजेक्ट है, वो आपका काम शुरू है और वो 3 साल के ऊपर जाना नहीं चाहिए. तो 30 डेज पे आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू an account known as unspent corporate social responsibility account. Unspent corporate social responsibility account. सर अगर ये जो आपने अकाउंट में ट्रांसफर किया है तो वो अपन को इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना. यस. सो company needs to spend in 3 years जो अकाउंट वहां पे है. अगर वो नहीं कर पाते, if not then क्या होगा, आपको फंड में वो ट्रांसफर करना पड़ेगा विदिन 30 days 30 on the date of completion of the 3rd year. ओके, जब आपका 3 साल खत्म होता है तो आपको समझ में आ रहा है कि अपन नहीं कर सकते वो स्पेंड, तो क्या करना पड़ेगा, वापस आपको फंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा. शेड्यूल नंबर 7 जो ऊपर लिखा है, विदिन 30 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ 3rd year. ओके,
Is this cool? You can just pause the video afterwards and you can just see it, okay, and you can just chalk it down, okay. Chalo, okay. Next, section 135(7), जितने 130 वाले सब CSR वाली हैं. Failure to spend amount of CSR और transfer to schedule bank. अगर आपने अमाउंट शेड्यूल बैंक में ट्रांसफर नहीं किया, वहां पे हमें डिले कर दिया, वहां पे कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया आपने, तो पहले क्या हुआ करता था, कंपनी के लिए मिनिमम 50,000, मैक्सिमम 25 लाख. जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसके लिए इम्प्रिजनमेंट हुआ करता था 3 साल का, फाइन 50, मैक्सिमम 5. अभी क्या किया गया, सीधी सी बात है, इम्प्रिजनमेंट निकाल दिया गया. पेनल्टी ऑन द कंपनी लोअर ऑफ 1 करोड़ और 2 टाइम्स द अमाउंट टू बी ट्रांसफर. सो 1 करोड़ और जितना अमाउंट ट्रांसफर करना मांगता था उसके जो भी लोअर है वो आपके लिए क्या रहेगा, पेनल्टी देगा. और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसके लिए लोअर ऑफ 2 लाख और 1/10 ऑफ द अमाउंट टू बी ट्रांसफर का आपको लोअर करना पड़ेगा, एंड दैट इज द पेनल्टी फॉर द ऑफिसर इन डिफॉल्ट. ओके, नेक्स्ट 135(8), पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव जनरल और स्पेशल डायरेक्शंस टू एंश्योर कंप्लायंस. न्यू सेक्शन इंसर्टेड, प्लीज पे अटेंशन. दिस इज एक्सक्लूसिव सेक्शन. ये जो नए वाले सेक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है वो उनको एक्सक्लूसिव पावर देते हैं कुछ कंपनीज को एक्सक्लूड करने के लिए, कुछ कंपनीज को एक्स्ट्रा बोलेंगे भाई तुझे ये इंफॉर्मेशन और देना पड़ेगा. ये उनके हाथ में पावर है. Central government may give such general or special directions to a company or class of companies as it considers necessary to ensure compliance of provisions of this section. Such company or class of companies shall comply with such direction. क्योंकि वो एक्सक्लूसिव पावर है, जो सरकार बोलेगा आपको करना पड़ेगा to that concerned companies. Okay, audit and auditors. Section 140 subsection 3. Non-filing of ADT3 by the auditor in case of resignation. रिजाइन जब आप करते थे आपको ADT3 फाइल करना पड़ता था. अगर आप नहीं फाइल करते हो तो पहले क्या था, 50,000 और पेनल्टी ऑडिटर रेम्युनरेशन विच एवर इज लेस, फर्दर पेनल्टी ऑफ 500 पर डे, मैक्सिमम 5 लाख का था. ये पहले वाला था. नाउ पेनल्टी कितने, लोअर ऑफ 50,000 और ऑडिटर्स रेम्युनरेशन एंड फर्दर पेनल्टी ऑफ 500 पर डे एंड मैक्सिमम ऑफ 2 लाख रुपीस. वेरी इंपॉर्टेंट. 143 सब सेक्शन 15. आपको अगर 143 अगर आपका दोनों ग्रुप है आपको ये तो मालूम होना चाहिए ऑडिटिंग का 143-15. तो आपको फ्रॉड रिपोर्ट करना पड़ता था. अगर आपको कुछ फ्रॉड आता है तो देयर वर द कंडीशंस 1 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ के लेस, यू नीड टू नो दिस थिंग. सो अगर आप फ्रॉड है कि मतलब देयर इज फ्रॉड और ऑडिटर नहीं रिपोर्ट करता है, फाइन ऑफ 1 लाख एंड मैक्सिमम 25 लाख. नाउ लिस्टेड कंपनी को पेनल्टी ऑफ 5 लाख एंड अदर कंपनी को 1 लाख का स्ट्रेट पेनल्टी दिया गया अगर आपने फ्रॉड नोटिफाई किया नहीं तो. 147(1), punishment for contravention of chapter of auditors by the company. Imprisonment and fine. तो अभी क्या है, there is no imprisonment at all. There is no imprisonment. There is no imprisonment. Minimum 10, maximum 1 lakh. Section 147(2) क्या है यहाँ पे, punishment for contravention of some sections by the auditor. अगर ऑडिटर कुछ सेक्शन में कॉन्ट्रावीन करता है, so contravenes any of the provisions of section 139, 143, 144, 145. अभी क्या किया उन लोगों ने, contravenes any of the provisions of 139, 144 और 145, 143 जो पावर्स एंड ड्यूटीज था वो उन्होंने ओमिट कर दिया. तो पहले अगर कॉन्ट्रावेंशन में इतने सारे सेक्शंस थे 139, 143, 144, 145, अभी 143 का जो था पावर्स एंड ड्यूटीज वो क्या कर दिया, ओमिट कर दिया है. रूल 11. So, रूल 11 was very temporary because वो डीमोनेटाइजेशन के समय लाया था जब नोटाबंदी था तब. तो क्या था, रीड इट आउट. अदर मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. जो आपको ऑडिटर का रिपोर्ट आता है, सो ऑडिटर के रिपोर्ट में आपको क्या डिस्क्लोज करना पड़ता था, डिस्क्लोजर्स इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज टू होल्डिंग्स एज वेल एज डीलिंग्स इन स्पेसिफाइड बैंक नोट्स. अभी क्या है, क्या वो खत्म हो गया. सो नाउ देयर इज नॉट देयर, सो इट इज ओमिटेड नाउ डीमोनेटाइजेशन का क्लॉज. रूल 11, अदर मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट. न्यू क्लॉज इंसर्टेड. नाउ व्हाट इज दिस क्लॉज? So I'll just tell you what is this. मैं आपको एक सिंपल वे में बोलता हूँ क्या है वो. So the point is that if any company wants to invest the funds, it did not invest through some subsidiary company. आपको कुछ इन्वेस्ट करने का है, आप इन्वेस्ट जब कर रहे हो तो आप किसी इंटरमीडिएट थ्रू नहीं कर सकते. नहीं, आपको खुद ही करना पड़ेगा. अरे फॉरगेट इन्वेस्टमेंट, आप तो पैसा ले भी नहीं सकते किसी इंटरमीडिएट से, आप डायरेक्टली ले लो, तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाओ, उनके थ्रू एंट्री मत मारो. ये अलाउड नहीं है. नाउ दिस इज नॉट अलाउड. इट इज नॉट अलाउड. ओके. रूल 11, अदर मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट.
न्यू क्लॉज एफ इंसर्टेड. सो पहले आई जस्ट टेल यू रिगार्डिंग दिस. तो पहले डिविडेंड का क्लॉज नहीं था. कहां पे? तुम्हारे ऑडिटर्स रिपोर्ट में. अभी नया क्लॉज इंसर्ट किया गया है. देखो, whether the dividend declared or paid during the year by the company is in compliance with the section of 123. तो आपको डिविडेंड का सेक्शन मालूम है कि 123, 124, 5, 6 एंड 7. तो इसमें इसके बारे में भी आपको क्या करना पड़ेगा? अभी ऑडिटर्स रिपोर्ट में डालना पड़ेगा. आपने बराबर पे किया है कि हैव यू पेड इट एट राइट, हैव यू पेड इट विद इन 30 days, so you have to report it under your auditor's report. Rule 11, so that is same, ये ऊपर मैंने पढ़ा था. So other matters to be included in the auditor's report. एकदम वाट लगा दिया कंपनी का. देखो क्लॉज जी में क्या बोला उन लोगों ने, जो मैंने ऊपर बताया था आपको. द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें क्या होना चाहिए? दो चीजें होना चाहिए. मैंने ऊपर डायग्राम में ड्रॉ किया था. एक तो आपको ऑडिट ट्रेल लॉग होना चाहिए और दूसरा एडिट लॉग होना चाहिए. ये दोनों लॉग चाहिए तुम्हारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दे शुड नॉट बी डिसेबलिंग फीचर. वो नहीं मांगता वहां पे. तो ये ऑडिटर्स रिपोर्ट में भी आपको डालना पड़ेगा. यू हैव टू चेक whether these two are there. Auditor needs to comment on that. Got it? So सब जगह से MCA ने कंपनी को पकड़ा है. Okay? Coming to the last parts, that is your CSR. Okay? Please expect the question on CSR. Okay? जितना मैंने ऊपर समझा है आपको, ongoing project, not ongoing project. Okay? We'll see a little bit more because see what I want to cover here is the definition parts. जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन लिया था लिस्टेड कंपनी का, तो वो एक डेफिनेशन दिमाग में रखो. व्हाई? बिकॉज़ दे विल आस्क यू डेफिनेशन एंड दीस डेफिनेशन आल्सो. सो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. सो रिमेंबर वन थिंग, जो एडमिन ओवरहेड्स है वो कितना है? दैट हैज टू बी 5% ऑफ योर सीएसआर एक्सपेंडिचर. आई विल शो यू दैट आल्सो व्हेन इट इज नेट प्रॉफिट, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, सीएसआर इंप्लीमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन. यहाँ पे तो रूल 7 दिख रहा है आपको. रूल 7, administrative overhead should not exceed how much? 5% of your total CSR expenditure. क्या बात कर रहे हैं वो कि तुम्हारा जो भी एडमिन का खर्चा है, जो भी रहने दो, वो 5% के ऊपर नहीं जाना चाहिए. ओके, नाउ एडमिन के खर्चे में भाई साहब क्या क्या नहीं आएगा वो दिया उन्होंने. ऐसा नहीं हो कि एडमिन के खर्चे तुम सब कुछ क्या कर रहे हो? एक्सपेंस आउट कर रहे हो. नो 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 नो. तो व्हाट इज दैट? पे अटेंशन प्लीज. Okay. It means the expenses incurred by the company for general management and administration, of the CSR functions in the company, but shall not include the expenses directly incurred for the designing, implementation, monitoring and evaluation of a particular CSR project or program. भाई साहब, understand this amendment very carefully. Admin को एक बजर है 5% का. भाई साहब उसके ऊपर सब डिसअलाउ हो जाए, तुम सीएसआर में दिखाई नहीं सकते उसको. पर उन लोगों ने एक रिलैक्सेशन दिया. दिस इज द रिलैक्सेशन. एडमिन शुड नॉट एक्सक्लूड, मतलब शुड नॉट इंक्लूड का मतलब क्या है कि भाई साहब वो एडमिन में आएगा ही नहीं. मतलब तुम कंप्लीटली उसका क्या कर सकते हो? सीएसआर में फायदा उठा सकते हो. कौन सा फायदा दिखाए? अगर आपका जो खर्चा है वो डायरेक्टली डिजाइनिंग के ऊपर, इंप्लीमेंटिंग के ऊपर, मॉनिटरिंग ऑफ ए पर्टिकुलर सीएसआर प्रोजेक्ट और प्रोग्राम. तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आप एक ऑर्फनेज के लिए कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो. ओके, एंड यू नीड डिजाइनर, यू नीड आर्किटेक्ट्स फॉर दैट. तो ये जो डिजाइनिंग है, जो मॉनिटरिंग शुरू है ना भाई साहब, वो तुम्हारा प्योरली सीएसआर एक्सपेंडिचर है. 100% सीएसआर एक्सपेंडिचर. प्लीज डू नॉट पुट दैट इनटू एडमिन. ये एडमिन का है नहीं. तो भाई साहब आपको यहाँ पे 100% क्या मिलेगा? सीएसआर स्पेंड मिलेगा. Got it? Next, rule 2 clause D, CSR. So basically pay attention. आपको इतना तो पता रहेगा कि CSR का जो भी खर्चा है उसमें बहुत सारे MCA ने डिसअलाउ किए थे. फॉर एग्जांपल, अगर आप कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए करते हो, डिसअलाउड है. आप कुछ एम्प्लॉइज के लिए करते हो, डिसअलाउड है. वो तो तुम्हारा नॉर्मल बिजनेस है यार. कंपनी नीड्स टू डू समथिंग फॉर द एम्प्लॉइज. That is not CSR. CSR should be something extra. कुछ एडिशनल होना मांगता, तब जाके वो CSR है. अभी यहाँ पे क्या लिखा है देखो. It means the activities undertaken by a company in pursuance of a statutory obligation laid down in 135 of the Act in accordance with the provisions, but shall not include the following. तुमने अगर ये सब कुछ किया वो तुम्हारे CSR में नहीं आएगा बॉस. अभी आराम से पढ़ते, उसमें भी एक्सेप्शन है. एक्टिविटीज अंडरटेकन पर्सन ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. अरे बाबा, जो तुम्हारा
नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तुम उसको ऐसा मत दिखाओ कि वो तुम्हारा CSR है, वो तुम्हारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तुम तो वैसे भी करने वाले थे वो। तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस से वन थिंग, तुम एक स्टेशनरी के बिजनेस में हो, यू आर मैन्युफैक्चरिंग बुक्स एंड ऑल, एंड ड्यूरिंग दैट थिंग तुमने क्या क्या मालूम क्या, तुमने कुछ बुक्स एक चिल्ड्रंस को बांट दिए। रिमेंबर वन थिंग, अगर तुम्हारे ही बिजनेस में तुमने इसके पहले भी बुक्स बांटे, ये तुम्हारा नॉर्मल कोर्स हो गया, तुम वही करते थे और वही कर रहे हो अभी भी। इट इज नॉट समथिंग आउटसाइड द बॉक्स, दैट इज नॉट योर CSR एक्सपेंडिचर। तो वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वाले को बाहर कर देगी, आपका पहला पॉइंट हो गया। अभी आगे देयर इज अ प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब क्या है, एक्सेप्ट, रुको, मतलब भाई साहब ये अलाउड है, हाँ, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ये कोविड रिलेटेड है। और अगर कोविड रिलेटेड है, कोविड क्या पूरे पूरे लाइफ टाइम चलने वाला है क्या, नहीं, तो कुछ ईयर्स रहेगा ना उसके लिए। तो देखो, प्रोवाइडेड दैट एनी कंपनी एंगेज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटी फॉर न्यू वैक्सीन, drugs and medical devices in the normal course of business may undertake research and development activity of new vaccine, drugs to related to COVID-19 for financial years, ये import 2021, 21-22, 22-23, 1st of April 22 से लेके 31st मार्च 2023 तक तुमने अगर इसमें से कुछ भी किया, नए वैक्सीन के रिसर्च डेवलपमेंट किया, हम ये सब आपको अलाउ कर देते हैं। सर एक मिनट, इसका मतलब ये है जो फार्मा कंपनीज है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में अगर उसने किया तो उसका तो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ बिजनेस है, वो रिसर्च डेवलपमेंट करना, एवरी डे डू समथिंग, उनके लिए भी अलाउड है। अरे बिकॉज इट्स अ बूस्ट टू द सेक्टर। अरे वो लोग इतना करके दे आर ब्रिंगिंग आउट वैक्सीन, सो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, आप और मेहनत करो उसके ऊपर, वी आर गिविंग यू बैकअप, हम ये जितना भी आपका खर्च है वो सब CSR में लेके आएंगे। दैट्स अ बिग रिलैक्सेशन फॉर देम। देखो, such research and development activities shall be carried out with collaboration with any of the institutes mentioned schedule number 7. So details of such activities shall be disclosed separately in the annual report on CSR including board report। मतलब आप अगर किसके थ्रू भी अगर कर रहे हैं, so say for example एक्सपेंडिचर करने के लिए एक तो आप खुद एक फाउंडेशन तैयार कर सकते हो, उसको हम सेक्शन 8 कंपनी से बोलते हैं, आप खुद का कर सकते हो नॉन प्रॉफिट, नहीं तो आप किसी दूसरे सेक्शन 8 कंपनी में जाके क्या कर सकते हो, उनके थ्रू कर सकते हो। बट रिमेंबर वन थिंग, दीज इंस्टीट्यूट आप जो भी करोगे दैट हैज टू बी देयर इन योर एनुअल रिपोर्ट, okay, and a board report also. Any activity undertaken by the company outside India except for thing, अभी आप यहां तक सुनो भाई साहब, तुमने अगर कुछ बाहर किया तो हम कैसे CSR मानेंगे? CSR का फंडा क्या है मुझे बताओ। तुम प्रॉफिट कमाते हो सोसाइटी की वजह से, तुम्हारा ड्यूटी है सोसाइटी के लिए, तुम अगर प्रॉफिट बाहर से कमा रहे हो तो भाई साहब सी एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द कंपनी आउटसाइड इंडिया, तुम बाहर जाके कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, हम वो कैसे CSR मानेंगे? नहीं मानेंगे हम वो CSR। बट वेट, देयर इज एक्सेप्शन फॉर दैट। व्हाट? except for training of Indian sports personnel representing any state or union territory at the international level, if any sports person is there, आप उसके लिए कुछ खर्चा कर रहे हो, for him you are doing something and that person is representing the union or the state, yes, done, we will grant you what? CSR expenditure in that. Contribution of any amount directly or indirectly to a political party, this is completely blocked, अब नहीं कर सकते वो, अब आपका CSR नहीं आएगा कुछ contribution political party का, तो आप पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, अब ये बोलो कि हम CSR कर रहे हैं, ऐसा कैसा होगा? एक्टिविटीज बेनिफिटिंग एम्प्लॉइज एज अ कंपनी, आप खुद के एम्प्लॉइज के लिए कुछ नहीं करते, वो तुम्हारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। एक्टिविटीज सपोर्टेड बाय द कंपनीज ऑन स्पॉन्सरशिप बेसिस फॉर डिराइविंग मार्केटिंग बेनिफिट्स फॉर इट्स प्रोडक्ट सर्विसेज, अगर आप मार्केटिंग में पैसा लगा रहे हो और आप ये बोल रहे हो सरकार को ये हमारा CSR है, हाउ इट इज CSR? अरे भाई साहब, CSR से तुमको प्रॉफिट नहीं कमाने का है, तुमको प्रॉफिट हुआ इसलिए सोसाइटी को वापस देने का है। तुम क्या कर रहे हो अभी? मार्केटिंग कर रहे हो और तुम ये बोल रहे हो कि हमारा CSR एक्सपेंडिचर है। हाउ इज दैट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट वी हैव डन इज, मार्केटिंग में तुमको जितना भी पैसा मिल रहा है ना, वो सब ब्लॉक्ड है। ब्लॉक्ड एज इन देयर इज, इट विल नॉट कम अंडर CSR एक्सपेंडिचर। एक्टिविटीज कैरिड आउट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी अदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, मतलब जो भी आगे जाके कोई भी लॉ आएगा, अगर वो सीधा क्लियर कर बोल रहा है कि भाई साहब दिस इज नॉट CSR एक्सपेंडिचर, इट इज नॉट अ CSR एक्सपेंडिचर। Okay, next, net profit, rule 2 clause H, net profit. So these are all section 135 only, yeah? So what does this means? तो यही बोलते हैं कि बाबा net profit as per your financial statement, but it shall not include, क्या include नहीं करेगा वो important है क्या? अरे बहुत सिंपल, जो अभी मैंने जस्ट बताया, any profit accruing from outside India, ये CSR अपने के लिए है, तुम यहाँ पे कमाओ, यहाँ पे दे दो, तो अगर बाहर कमा रहे हो हमको कुछ नहीं लेना देना, वो तुम्हारे नेट प्रॉफिट में मत लो। तो एनी प्रॉफिट फ्रॉम ओवरसीज ब्रांच डोंट इंक्लूड इन दैट, एनी डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अदर कंपनीज
तुमको बाहर के कंपनी से कुछ डिविडेंड मिल रहा है तो तुम यहाँ पे थोड़ी दोगे यार, वो प्रॉफिट थोड़ी होगे। इसका मतलब क्या है, मतलब एनी कंपनी हु इज रिसीविंग, तो आप क्या कर रहे हो, वो प्रॉफिट ले रहे हो एंड यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर हियर। तो सी एनी डिविडेंड रिसीव फ्रॉम द अदर कंपनीज इन इंडिया व्हिच आर कवर्ड अंडर द कंप्लाइंट विद द प्रोविजन सेक्शन 135 ऑफ द एक्ट प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ फॉरेन कंपनी कवर्ड अंडर दिस रूल्स। इसका मतलब है देयर कैन नॉट बी डबल सीएसआर। यार अपन बोलते हैं डबल टैक्सेशन। अगर एक कंपनी के शेयर्स है आपके, अगर आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उस शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड मिल रहा है, भाई साहब वो कंपनी सीएसआर फॉलो कर रही है, तो तुम वापस फॉलो करोगे क्या? तो वो भी फॉलो करेगा, वो भी 2% खर्चा करेगा, हम भी करेंगे 2% खर्चा। ऐसा कैसा ये, दिस इज नॉट अ लॉ, दिस इज डबल टैक्सेशन, मतलब दैट लाइंस पे ये डबल सीएसआर हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोलते कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। तो अगर आप कंपनी ऐसे हो जहां पे आपने इन्वेस्ट किया है और वो जो कंपनी है जो आपको डिविडेंड दे रही है, तो उसने अगर किया है तो तुमको करने की कोई जरूरत नहीं। Got it? उसके बाद ये हमारा कर दिया अपन ने, ये ऑलरेडी डन दिस, व्हाट इज ऑनलाइन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट रूल 3, इजी वाला एकदम। If the company ceases to be covered under section 35 for 3 years, it shall not comply with subsection 2 and 2 subsection 5। मतलब क्या बात कर रहे हैं कि भाई साहब तुम पहले सीएसआर में थे और कंसेक्यूटिव 3 साल तुमने क्या कर दिया, यू स्टॉप एनी ऑफ द क्राइटेरिया फॉर सेक्शन 135, so you will not comply with any of the sections। तुमको सेक्शन 2 से लेकर सबसेक्शन 5 तक तुमको नहीं कंप्लाई करना। उन्होंने और एक क्वेश्चन ऐड कर दिया उन लोगों ने, सबसेक्शन 6, मतलब अगर आप 3 साल के लिए सीज करते हो क्या एनी ऑफ द क्राइटेरिया फॉर सीएसआर, तो यू विल कम आउट ऑफ द सेक्शन 135। Remember one thing, subsection 6 क्या है मुझे बताओ, it is the ongoing project and not ongoing project वाला जो मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था, तो आपको वो भी फॉलो करना नहीं पड़ेगा। ओके, रूल 4, सीएसआर इंप्लीमेंटेशन। तो बेसिकली आप सीएसआर कैसे कैसे कर सकते हो, सीधी सी बात है यार, एक तो आप खुद कर सकते हो, नहीं तो आप खुद का फाउंडेशन बना सकते हो, नहीं तो आप किसी और के थ्रू कर सकते हो जो सेक्शन 8 कंपनी है, पर वो रजिस्टर मांगता the company itself or through section 8 company or a registered public trust under the income tax rate established by the company, either singly or along with a section 8 company registered any entity established under section the act of parliament and a section 8 company or a registered public company having an established track record of at least 3 years in a similar business। अगर तुम किसी दूसरी के सेक्शन 8 के थ्रू कर रहे हो तो एक चीज ध्यान में रखो, उसका 3 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए, हैज टू हैव फॉर 3 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड। फिर तुम क्या कर सकते हो, दूसरे के सेक्शन 8 की कंपनीज पे तुम भी क्या खर्चा कर सकते हो। मेक श्योर यू हैव दैट इन माइंड। Okay, we are coming to the last part. Pay attention. Registration. Such entity shall register itself with the central government by filing the form CSR1। ये नया कर दिया उन लोगों ने। Signed by the entity and verified digitally by CA, CS or CM in practice। Electronically with the registrar with effect from 1st of the April 21। Okay, not to affect the approved programs prior to 1st April 21। मतलब जो 1 अप्रैल 21 से जितने प्रोग्राम्स हैं तो आपको क्या करने पड़ेंगे, you have to file a form CSR1 in case of registration and you need to verify it from whom, CA, CS and CM। Rule 7 I have already explained you about the admin का खर्चा 5% वाला। allowed expenses, ये भी एक easy वाला पॉइंट है, pay attention। तो आप जब भी कुछ कैपिटल असेट या कुछ भी आप असेट खरीद रहे हो for this CSR expenditure, make sure वो सिर्फ तुम्हारे नाम पे है। It has to be in the name of whom, the section 8 company or the beneficiary। मतलब it should not be like that कि कोई intermediary है, जैसे सब डमी कंपनीज इन बिटवीन, उनके नाम पे सब कुछ है। नो, वो सब तुम्हारे नाम पे चाहिए, तब जाके तुमको क्या मिलेगा, फायदा उसका मिलेगा। Impact assessment analysis, okay, this is something new। Impact assessment analysis, pay attention please। तो ये किसको applicable है, I think ये ELY exam ला NR, this is important, this is very important, this they will ask you for the examination, okay, this is important। For every company having average CSR obligation of 10 crore rupees or more, first of all दिमाग में ये डाल दो, 10 crore rupees or more in pursuant to section 135 of the act in the 3 immediately preceding financial years। तो पहले अगर आपका कुछ ऑब्लिगेशन है, कितना ऑब्लिगेशन है, 10 करोड़ के ऊपर, तब जाके ये इंपैक्ट असेसमेंट एनालिसिस पिक्चर में लेके आना। अगर 10 करोड़ का तुम्हारा ऑब्लिगेशन ही नहीं है, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, तो तुम 2% करोगे ना एवरेज 3 इयर्स का, उसका जो अमाउंट है वो 10 करोड़ के ऊपर मांगा, तब जाके तुम इस सेक्शन पे आओगे। तो पहला पॉइंट सर करने का क्या है वो बताओ। तो यू हैव टू डू एन एनालिसिस, खुद नहीं करने का, दूसरे को बोलने का करने के लिए। थ्रू एन इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑफ द सीएसआर प्रोजेक्ट्स हैविंग आउटले ऑफ 1 करोड़ रुपीज और मोर। तो उनका जो एजेंसी का ये रहेगा ना, उनके बारे में शुरू है, तो उनका कितना मांगता, आउटले 1 करोड़ ऑफ द सीएसआर प्रोजेक्ट हैविंग 1 करोड़ रुपीज और मोर एंड व्हिच हैव बीन कंप्लीटेड नॉट लेस देन 1 ईयर बिफोर अंडरटेकिंग द इंपैक्ट स्टडी। देखो क्या बात कर रहे हैं, थ्रू एन इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑफ देयर सीएसआर प्रोजेक्ट्स हैविंग आउटले ऑफ 1 करोड़ रुपीज और मोर, रिपोर्ट शैल बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड। मतलब बोर्ड के सामने वो इंडिपेंडेंट एजेंसी क्या करेगा, बोर्ड मतलब बेसिकली लोग क्या करेंगे, अरे मॉनिटरिंग करेंगे, बराबर खर्चा किया है ना,
शेड्यूल 7 के हिसाब से किया है ना, वो सब कुछ करेंगे. A company undertaking impact assessment may book the expenditure towards CSR for that financial year, which shall not exceed 5% of the total CSR expenditure for that financial year, or 50 lakh rupees, whichever is less. अरे बाबा, इम्पैक्ट असेसमेंट करने के लिए इंडिपेंडेंट एजेंसी को पैसा देना पड़ेगा, उनका स्टाफ भी रहेगा ना, तो वो पैसा भी तुम CSR के अंडर जमा सकते हो, यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट कितना होना मांगता? 5% और रुपीज 50 lakhs, whichever is less. Okay, ये फर्स्ट में जब वापस पढ़ता हूं, pay attention please. To an independent agency of the CSR projects having outlay of 1 crore rupees or more. मतलब it is not only independent agencies there, and it is they're talking about the projects which you have in hand, and if their outlay is 1 crore or more, उनका वो impact analysis करेंगे. Okay, उनका वो क्या करेंगे? Impact analysis करेंगे. Okay. Okay. I think that's it. We have come to the end. Yes, that's it. Okay. And this proper. So I've taken all the amendments. Yes, I've covered everything. Okay. So make sure you go through these amendments. आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, आप वो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो. They are roughly 54-55 amendments. Please do not miss out on the CSR part. It's very important. जो मेन ऊपर वाले हैं, स्मॉल ओपीसी, ये तो आई थिंक वो आपको अभी तक तो बाहर हो गए रहेंगे. जो बीच के है, द ऑडिट ट्रायल, द ट्रायल लॉग, द एडिट लॉग्स, इवन दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे विल दीस आर ऑल न्यू सेक्शंस. प्लीज कीप इन माइंड द इम्प्रिजनमेंट वाला पार्ट, वो आप कंप्लीटली निकाल दिया. ओके, मेक श्योर यू लर्न द न्यू पेनाल्टीज. ओके, आपको कुछ ज्यादा फिगर्स नहीं याद रखना क्योंकि बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो. ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम मी. I hope you like this session. Please take the most benefit out of this because remember one thing, आप पास एग्जामिनेशन भी करोगे. I know, I'm very sure of that, but do not miss out on the amendments. Okay, in the coming videos also I'll be discussing the amendments relating to your IDT also, एंड ऑल्सो आपका FM का, जो आपका FM का है उसका भी मैं रिवीजन लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ. ओके, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, लॉ का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है उसका भी एक वीडियो आने वाला है. ओके, सो प्लीज टू सब्सक्राइब टू योर चैनल, एंड इफ एनीथिंग इज देयर प्लीज ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स so that we can see it and we'll be very happy to reply. Okay, thank you so much for watching and have a great day. Thank you.